Hello, good morning, students. I take this opportunity to remind you that we have already completed chapter number 1 and chapter number 2 related with electrostatics. In electrostatics, we have done a number of theory questions, we have done numericals, and we've also done reasoning questions. By no means I want to suggest that the number of questions are complete. There is always a scope of adding 20, 30 more questions to the list. May I assure you that as time will pass by, we will keep on adding more and more number of questions to electrostatics. But for everything, there has to be a limit. You see, the time, we have limited time only. So now I think we can start with the next topic called current electricity. Let's start with current electricity today. So we start with lesson 27, current electricity. And firstly, we'll begin with knowing some terms that we use in this chapter. The first term is about electric current. The electric current is represented by capital I. It is a scalar quantity and its unit is ampere, which is written as capital A. Firstly, let me inform you that inside a conductor, there are a large number of free electrons. The free electrons, they are always in a random motion, moving left and right. They do not have any preferred direction. But when we apply a battery to the conductor like this, an electrical field is created whose direction is from positive to negative, and the electrons which are there in it, they experience a force in a direction opposite to the electrical field, and they begin to slowly drift or move towards the left, and thereby the electrons, they move like this. But that motion of the electrons, movement of negative charge, that gives us what we call as electronic current. We never really talk about electronic current in 12th class. We'll always be talking about conventional current. Conventional current वो होता है which flows from positive terminal towards the negative terminal. So these points we will be seeing again when we talk about drift velocity and things like that. But today it is sufficient to know कि जो electric current है has been defined as the charge flowing per unit time, या हम इसको लिखते हैं rate of flow of charge को across any cross section of the conductor, that we call as current. Rate of flow of charge या Q divided by T. दूसरी टर्म है जी करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी को J से रिप्रेजेंट करते हैं. एज द नेम इंडिकेट्स कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर. सो करंट डेंसिटी J वो होता है करंट डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया. I divided by A is called current density. Direction of current density will be in the same direction as that of electrical field. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वही डायरेक्शन होगी किसकी? करंट डेंसिटी की. द थर्ड टर्म इज अबाउट रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और आप जानते हो इसकी यूनिट होती है ओम. सपोजिंग हमारे पास एक कंडक्टर हो ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A, तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A. ये फॉर्मूला हमें बताता है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर
और तीसरी बात है कि डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। जैसे मान लिया हमारे पास टू आइडेंटिकल वायर्स हों, लेंथ भी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, एक कॉपर की बनी हो, एक एल्यूमिनियम की बनी हो, तो वी विल नोटिस कि जो एल्यूमिनियम वायर है उसका रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉपर। यू से लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो फिर डिफरेंस क्यों आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो तीन चीज़ें हैं ऑन विच द रेजिस्टेंस वुड डिपेंड: लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल। इसको वी कॉल एज रेजिस्टिविटी। नाउ वी टॉक अबाउट द टर्म कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ये रो है और इसकी यूनिट होती है ओम मल्टीप्लाइड बाय मीटर। देखिए यहां से आप देख सकते हैं, रो यहां रखा, एरिया इधर चला गया, लेंथ इधर आ गया, तो रेजिस्टेंस के लिए ओम हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया और ये मीटर हो गया, तो वो हो गया ओम मीटर। अब एग्जाम में एज ए 1 मार्क क्वेश्चन दे कैन आस्क कि भाई व्हाट इज रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी अगर हमने डिफाइन करनी हो तो बड़ा सिंपल है। हम एक ऐसा क्यूब ले लें जिसका साइड मेजर्स 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो जो उस क्यूब का रेजिस्टेंस होगा उसी को वी कॉल एज रेजिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर। तो in a simple way, it is the resistance of a unit cube made up of that material. Resistivity देखिए सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंडेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है विद द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। द नेक्स्ट वर्ड इज कंडक्टेंस, जिसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और कंडक्टेंस जी होता 1/r। मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। और आप देख रहे हो कि इसकी यूनिट क्या होगी? पर ओम होगी। द लास्ट वर्ड इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और देखें इसका फॉर्मूला, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/ρ। रो क्या था? रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी? ओम मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होगी? ओम रेज टू 1, मीटर रेज टू 1। तो these are some of the terms which we will be using in this chapter. Okay students, let's start with this next question. The question says कि if the resistance of the magnet wire is the same as that of copper wire, then which of the two wires is thicker? I am repeating again. The question says कि हमारे पास दो वायर्स हैं, दोनों की लेंथ सेम है, एक वायर मैग्नीन की बनी है, दूसरी वायर कॉपर की बनी है। हमें ये बताना है कि अगर इनका रेजिस्टेंस सेम है तो कौन सी वायर विल बी थिकर। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द फॉर्मूला कि R इज इक्वल टू ρl/A। बाय क्वेश्चन इन दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस सेम है तो हम उसको सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों की लेंथ भी सेम है, उसको भी सर्कल कर देते हैं। तो ये एरिया इधर चला जाएगा, तो रो विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। क्या मतलब? जिस वायर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी वही वायर ज़्यादा थिकर होगी। स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नेट वायर है ये एक एलॉय है। तो इन जनरल जो एलॉयज होते हैं उनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू प्योर मेटल। आई एम रिपीटिंग अगेन, इन जनरल एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी है वो ज़्यादा होती है देन प्योर मेटल्स ऑफ विच दे आर रियली मेड। तो ये हम याद कर लें अब कि जो रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नेट वायर है वो ज़्यादा है देन द रेजिस्टिविटी ऑफ
कॉपर। इसलिए जो मैग्नीन वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ग्रेटर होगा देन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉपर वायर। तो कौन सी वायर ज़्यादा थिकर हुई? ये एलॉय वाली वायर ज़्यादा थिकर हुई। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी बुक से है, एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर 3.17 है, ये पेज नंबर 129 पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ही सेज कि एक वायर एल्यूमिनियम की बनी है, एक कॉपर की बनी है। मान लिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉपर वायर इज दिस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज दिस। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि जो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर और जो डेंसिटी ऑफ कॉपर दी हुई है, ये लिखा है। इसी तरीके से रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम वायर एंड डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम वायर भी दी हुई है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर रेजिस्टेंस ऑफ द एल्यूमिनियम वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर, तो विच ऑफ द टू वायर्स विल बी लाइटर? विच ऑफ द टू वायर्स विल बी लाइटर? दैट इज द क्वेश्चन। तो हम देखिए स्टार्ट करते हैं विद द फार्मूला कि रेजिस्टेंस ऑफ द एल्यूमिनियम वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर। रेजिस्टेंस का फार्मूला लगाया, रो एल डिवाइडेड बाई ए, रो एल डिवाइडेड बाई ए। ये एल दोनों तरफ कट गया एंड देयरफॉर resistivity of aluminium divided by resistivity of copper will be equal to cross sectional area of aluminium divided by cross sectional area of copper। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। अब हम स्टार्ट करते हैं कि वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखें मास विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, फिर ये मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी। अब दोनों केसेस में लेंथ सेम है, इसलिए हमने उस पर सर्कल लगा दिया एंड वी से कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मल्टीप्लाइड बाई डी। अब हम इस फैक्ट को दोबारा से देख रहे हैं कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डी। तो मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई मास ऑफ एल्यूमिनियम कैसे लिखेंगे? ए ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई ए ऑफ कॉपर और डेंसिटी ऑफ कॉपर। इसी तरह से मास ऑफ एल्यूमिनियम के लिए लिखेंगे ए ऑफ एल्यूमिनियम इंटू डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। ये जो टर्म है ये अभी आपने देखी थी कि ए ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाई ए ऑफ कॉपर इज दिस। सो A of copper by A of aluminium will be rho of aluminium divided by rho of copper into density of copper by density of aluminium। Students, इनकी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं और जो आंसर आएगा वो रफली 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मास ऑफ द कॉपर वायर है वो लगभग 2 टाइम्स है एज कंपेयर टू मास ऑफ एल्यूमिनियम वायर। तो कौन सी वायर लाइटर हुई? सर्टनली एल्यूमिनियम वायर इज लाइटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि शो दैट इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड n times its original length, then the final resistance of the wire becomes n square times the original resistance। तो देखिए यहाँ एक वायर दिखाई है जिसकी लेंथ L0 है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A0 है। इस वायर को क्या किया है? स्ट्रेच किया गया है ताकि इसकी लेंथ बन जाए कितने टाइम्स? n टाइम्स ऑफ N0। तो सबसे पहले तो हमें ये कहना है कि जो वॉल्यूम है इस फिगर का और वॉल्यूम इस फिगर का वो इक्वल होंगे। मतलब वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फाइनल वायर। अब ये तो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है A मल्टीप्लाइड बाई L। तो पहले का होगा A0 इंटू L0 इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? AF क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू N इंटू L0। तो ये L0 देखिए कट गया और AF की वैल्यू आ गई
ए नॉट डिवाइडेड बाई एन। तो इस तरीके से हमने कोरिलेट किया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फाइनल वायर विद द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इनिशियल वायर। अब हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं कि वी नो कि आर नॉट होता है रो इंटू एल नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट। वही फार्मूला हमने फाइनल वायर के लिए भी लगाया, रो इंटू एल फाइनल डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया फाइनल। तो इट इज रो इंटू फाइनल लेंथ कितनी हो गई, एन टाइम्स ऑफ एल नॉट। फाइनल एरिया कितना हो गया, ए नॉट डिवाइडेड बाई एल। तो वो एक एन ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा एन स्क्वेयर, और ये जो रो इंटू एल नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट है दैट विल बिकम आर नॉट। तो इससे हम सीख रहे हैं कि अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच कर दें ताकि उसकी लेंथ n टाइम्स हो जाए ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, तो जो उसका रेजिस्टेंस है वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। सो दैट्स व्हाट वी हैव सीन इन दिस। In the next question, he says कि if a wire is stretched to make it x% longer, then find the percentage increase in its resistance। तो देखिए हमने कहा कि हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है एल नॉट, जिसका रेजिस्टेंस है आर नॉट। अब हमने इस वायर को स्ट्रेच कर दिया ताकि जो फाइनल लेंथ है वो कितनी बन गई, x% लॉन्गर। मतलब फाइनल लेंथ कितनी हुई, जितनी पहले थी एल नॉट प्लस x%। x% का मतलब x अपॉन 100 इंटू एल नॉट। तो एल नॉट बाहर निकाल लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल लेंथ है वो कितने टाइम्स हो गई ऑफ ओरिजिनल, 1 प्लस एक्स अपॉन 100। इसका मतलब n हैज बिकम इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 100। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि जो फाइनल रेजिस्टेंस होता है वो n स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओरिजिनल होता है। तो हम आर नॉट को नीचे ले आते हैं और n की वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 100 का होल स्क्वायर। अब हम इसमें बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन करेंगे क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं। सो ये बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन में 1 प्लस या 1 माइनस होना चाहिए पहले तो, और फिर उसके बाद ये जो पावर होती है ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाती विद द सेकेंड टर्म। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाने के लिए टर्म होनी चाहिए चाहे तो 1 प्लस एक्स हो या 1 माइनस हो। यहाँ पे जो पावर होती है वो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाती है विद द सेकेंड टर्म। सो इट बिकम्स 1 प्लस 2x अपॉन 100। इस 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं और ये बन गया 2x अपॉन 100। एलसीएम लेते हैं, आर फाइनल माइनस आर ओरिजिनल डिवाइडेड बाई आर नॉट। आर एफ माइनस आर नॉट का मीनिंग क्या होगा, ये होगा चेंज इन द रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस। इसको स्टूडेंट्स कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, और उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो परसेंटेज इंक्रीज आ जाता है। तो परसेंटेज इंक्रीज हो गया 2x%। तो व्हाट वी आर लर्निंग इज क्वाइट सिंपल कि दो बातें मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर वायर को देखिए स्ट्रेच किया जाए ताकि उसकी लेंथ बन जाए n टाइम्स, तो दो बातें आप समझ लें कि एक तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितने टाइम्स हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओरिजिनल हो जाएगा। और अगर लेंथ को x% बढ़ा दिया जाए तो जो परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस होगी वो डबल हो जाएगी, 2x% हो जाएगी। स्टूडेंट्स बहुत क्लियरली आपको ये याद रखना है, समझना है कि रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आ सकता, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड इट डज नॉट डिपेंड एट ऑल ऑन द शेप
of the conductor. So that's how we do this. अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स. ये कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है. Nobody is going to ask you to write an essay on the color code for resistors. इसकी एप्लीकेशंस आती हैं एग्ज़ाम में. तो देखिए, एक जो रजिस्टर होता है, कार्बन रजिस्टर की हम बात कर रहे हैं, वो एक सिलेंडर के फॉर्म में होता है और उसकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की, वो मार्क की जाती है, इंडिकेट की जाती है बाय द हेल्प ऑफ सम कलर्ड बैंड्स. आप नोट कर रहे हैं फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड एंड थर्ड बैंड ये इक्वी स्पेस्ड हैं, इक्वल स्पेसिंग है यहाँ पे. लेकिन जो फोर्थ बैंड है वो थोड़ा सा दूर होता है एज कंपेयर टू द अदर्स. तो फिर से समझ लें, जो फर्स्ट 3 बैंड्स होते हैं वो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंडिकेट करते हैं और जो फोर्थ बैंड होता है वो परसेंटेज टॉलरेंस बताता है. वो बताता है कि हाउ एक्यूरेट द रजिस्टर इज लाइकली. तो वो एक्यूरेसी की बात करता है. तो उसकी बात हम थोड़ी देर में कर लेंगे. पहले हम कलर कोड की बात करें कि किसी भी रजिस्टर की वैल्यू को कैसे रीड करें. तो वो जो कलर कोड है वो हमें याद करना होगा. तो देखिए, यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखने की कोशिश की है. ये सेंटेंस मैं धीरे धीरे पढ़ के सुनाऊंगा, फिर आप इसको याद कर लेना. ये है सॉरी बी रॉय of Great Britain had a very good wife. I am reading again. B. Roy कहाँ रहते थे? Of Great Britain had a क्या? Very good wife. एग्जाम में आपने पहले ये सेंटेंस लिखना है और उसके बाद आपने 0 से स्टार्ट करना है एंड यू विल रीच टिल 9. बट मैनी ए टाइम्स स्टूडेंट्स व्हेन दे राइट दिस दे इनवेरिएबली रीच 10. वाई? क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है कि वो हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं. तो अगर आप 1 से स्टार्ट करोगे तो यू विल रीच 10. इफ़ यू आर रीचिंग 10 इट मीन्स आपने 1 से स्टार्ट किया है. आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? 0. एनीवे, आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस अगेन. ये क्या सेंटेंस है? बी रॉय ऑफ का कोई मीनिंग नहीं है. जी फॉर ग्रेट ब्रिटेन, हैड ए का कोई मीनिंग नहीं है. वेरी गुड वाइफ. अब स्टूडेंट्स, हमने इस सेंटेंस की मदद से कलर्स को याद करना है. एक बी यहां भी है और एक यहां पे डब्ल्यू है. ये ब्लैक है और ये वाइट है. आप इसे ऐसे याद कर लें कि फैशन इंडस्ट्री में 2 कलर हमेशा चलते हैं, वो फेड नहीं होते कभी. एक ब्लैक तो दूसरा वाइट. आप ही बताएं, ब्लैक कलर के पास कौन सा शेड होगा? ब्राउन. फिर उसके बाद रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑरेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, येलो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जी फॉर ग्रीन. देखिए, आप पार्क जाते हैं, येलो कलर्स के साथ कौन सा कलर एसोसिएटेड है? ग्रीन. अगर आप येलो और ग्रीन कलर को मिक्स कर दें तो कौन सा कलर बन सकता है? ब्लू कलर. वायलेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. और जी इज़ फॉर ग्रे, क्योंकि ब्लैक और वाइट को अगर मिक्स करोगे तो क्या आएगा? ग्रे कलर. तो बी फॉर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट.
तो स्टूडेंट्स ये हमें एज इट इज याद रखना है, एग्जाम में इसको लिखना पड़ेगा हमें। तो इस कलर कोड की मदद से हम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये जो फोर्थ बैंड था जो इन तीनों से थोड़ा दूर होता है वो बताता है परसेंटेज टॉलरेंस। अगर ये फोर्थ बैंड देखिए गोल्डन है तो इसका मतलब ये बहुत ही अच्छे टाइप का रजिस्टर है, इसकी एक्यूरेसी होगी ±5%। अगर ये सिल्वर है तो ±10%, और अगर कोई कलर नहीं है तो ±20%। अगर गोल्डन है फोर्थ बैंड तो ±5%, सिल्वर है तो ±10%, और कोई कलर नहीं है, फोर्थ बैंड है ही नहीं, तो इट विल बी ±20%। नाउ एक पॉइंट हमने याद रखना है, देखिए ये जो गोल्डन एंड सिल्वर हैं ये नॉर्मली यूज किए जाते हैं टू इंडिकेट द टॉलरेंस। लेकिन मान लिया थर्ड बैंड पे गोल्डन या सिल्वर आ जाए बैंड, अगर थर्ड बैंड गोल्डन या सिल्वर हो तो उसका मीनिंग होगा गोल्डन का मतलब होगा 10⁻⁻1 और सिल्वर का मतलब होगा 10⁻⁻2। तो ये हमें याद रखना है कि अगर गोल्डन कलर थर्ड बैंड पे है तो उसका मीनिंग होगा 10⁻⁻1 और सिल्वर अगर है तो 10⁻⁻2। चलिए ये बहुत सिंपल था, अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। He says, read the value of the following resistors. पहला बैंड रेड है, दूसरा ब्लैक है और तीसरा ऑरेंज है। टुडे आई कैन शो यू द कलर्स। देखिए पहला कौन सा था? रेड। रेड का मतलब 2। दूसरा क्या है? ब्लैक। ब्लैक मतलब 0। और ये जो थर्ड बैंड है ये ऑरेंज है। ऑरेंज का मतलब ये है 10⁻3। अब क्योंकि यहां पे कोई बैंड नहीं है इसका मतलब इसकी टॉलरेंस हो गई ±20%। अब चलिए वही कलर कोड यूज करके इनकी इस रजिस्टर की वैल्यू को रीड किया जाए। फर्स्ट बैंड येलो है, देखिए येलो है 4 और ब्लू क्या है 6 और ग्रीन क्या है 5, तो ये होता है 10⁻5। और ये गोल्डन कलर है, फोर्थ बैंड गोल्डन है तो वो हो गया ±5%। चले एक और कर लें। पहला रेड है, दूसरा येलो है और तीसरा सिल्वर है। रेड के करस्पॉन्डिंग क्या था 2 और येलो के करस्पॉन्डिंग क्या था 4। हमने लर्न किया कि अगर थर्ड बैंड सिल्वर है तो इसका मतलब इट इज 10⁻⁻2 और यहां पे कोई बैंड नहीं है, इसका मतलब ये क्या है प्लस माइनस, टॉलरेंस इज ±20%। Thank you, students.